So my topic is introduction to schools of yoga. So should I start? Yes, please. Okay. So my topic is introduction to schools of yoga. So first, yoga is the journey from complete ignorance to complete enlightenment. And the ultimate goal of yoga is self-realization through a removal of ego. And this journey can be done in various ways. So top of the mountain can be reached by taking one or two or any of the routes. So in this way, human beings with so much of diversity found many paths to spiritual development. So there are the schools in the world of yoga based on different philosophies. So there are number of recognized paths of yoga, of which 6 have gained prominence in the ancient culture of India. These paths are Gyan Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raj Yoga, Hatha Yoga, and Mantra Yoga. So starting 5 are in our course, so we'll talk about that. First is Jnana Yoga. In Sanskrit, Jnana means knowledge. So Jnana Yoga is also called as yoga of wisdom. Gyan Yoga is the path of knowledge, and it is associated with Advait Vedanta, that is the process of discrimination between what is real and what is not real, what is true and what is untrue. So basically, by following Gyan path, we can gain knowledge, we analyze it, and then we convert it into awareness. And as our awareness grows up, our ego goes down, and we move towards closer to self-realization. योगिता जी, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ज्ञान योगा जो है इसी में ही है, ये एक बार आप पीछे करेंगे क्या स्लाइड? हाँ, ये जना योगा है ना, इसी के अंदर ये ज्ञान योगा है, मतलब राइट? नहीं, ये जो स्पेलिंग लिखा है ये स्पेलिंग ज्ञान योगा है, उसको प्रोनाउंस ज्ञान जी, ठीक है। हाँ, ज्ञान योग करके प्रोनाउंस करते हैं, हम ज्ञान करते हैं ना, जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञ जो है ना वो ज्ञ प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू। Now there are 4 pillars of Gyan Yoga. They are known as Sadhana Chatushtay, and 4 pillars are Vivek, Vairagya, Shatshampat, and Mumutsav. So what is Vivek? So Vivek is ability to judge what is real, unreal, what is true, untrue, and Vairagya is detachment from worldly things. योगिता जी, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा हिंदी को भी मिक्स करो ना, मजा आएगा, हो सकता है तो। ओके सर, आई विल ट्राई। विवेक मतलब होता है कि जब आपकी एबिलिटी है जज करने की, मतलब आप यूज करते हो अपना नॉलेज टू डिस्क्रिमिनेट कि रियल क्या है, अनरियल क्या है, ट्रूथ क्या है, अनट्रूथ क्या है। अब सेकेंड इज वैराग्य। वैराग्य इज डिटैचमेंट, मतलब आपके पास सब है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, सब है, लेकिन आपको उससे थोड़ा खुद को डिटैच करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गो मूव टू सेल्फ रियलाइजेशन पाथ। तो दैट इज वैराग्य। एंड षट संपत, तो षट संपत में 6 वर्च्यूज आते हैं, दैट विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। एंड लास्ट इज मुमुत्सव। मुमुत्सव मतलब होता है देयर इज हंगर फॉर लिबरेशन। See, Shat Sampat, there are 6 virtues. First is Shama, Dhamma, second is Dhamma, Uparti, Titiksha, Shraddha and Samadhan. तो क्षमा मतलब होता है withdrawal of senses, मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो. Dhamma is self control, that is controlling the senses. And Uparti is letting go of all the worldly actions. Then Titiksha is आपका टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, वो कि आप कितना जो सफरिंग्स हैं हम कितना सहन कर सकते हैं, दैट इज तितिक्षा. एंड श्रद्धा इज faith means you have to believe your guru, your text and the yogic path. And last is samadhan, that is mental focus, concentration. So these are the Shat Sampat's 6 virtues.
Now after one has integrated the 4 pillars जो हमने अभी देखा, now they can begin 3 core practices. So they are ready to start with 3 core practices. So 3 core practices include Shravan, Manan and Nididhyasan. Shravan means सुनना, hearing. इसमें क्या है कि आप नॉलेज गेन करते हो आइदर बाय रीडिंग और आपके जो गुरु है उनके साथ डिस्कस करना, एंड यू एंगेज इन सच philosophical discussions. And manan is reflection, means अभी तक जो आपने सुना है उसको अब आप incorporate करोगे what you have learned. And nididhyasan is final, that is meditation. Now the second is bhakti yoga. Bhakti, so term bhakti comes from bhaj, which means to be attached to God. So bhakti yoga is the yoga of devotion, and bhakti means unconditional and intense love for God. So in this we the yogi get rid बाय, योगी जो रहता है वो अपनी जितनी भी ईगो है उनसे दूर हो जाता है बाय डेवलपिंग सेल्फ सरेंडर एंड फीलिंग. उसको एक फीलिंग आती है कि नहीं, मैं एक भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट हूँ. तो दिस इज भक्ति योग. Now types of bhakti mein there are 2 classifications. First includes sakamya bhakti and nishkamya bhakti, and second is apara bhakti and para bhakti. So in sakamya bhakti जो भक्त रहता है वो भगवान के लिए डिवोट करता है विद डिजायर कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये बीमारी है तो उससे मुझे दूर करो, या मुझे कुछ वेल्थ चाहिए तो उसके लिए वो डिवोट करता है. मतलब कुछ डिजायर से जब हम डिवोट करते हैं दैट इज सकम्य भक्ति. एंड निष्काम्य भक्ति मतलब निश इज विदाउट एंड काम्य इज विश. तो निष्काम्य भक्ति इज जब हम डिवोट करते हैं विदाउट एनी डिजायर, मीन्स अ डिवोटी इज ग्रेटफुल टू गॉड कि हाँ उसने मुझे जितना भी दिया है आई एम सेटिस्फाइड. And second classification is apara bhakti and para bhakti. So apara bhakti जो है that is for beginners. इसमें क्या होता है कि जो भक्त है वो इमेज को डेकोरेट करता है फ्लावर्स से, आरती अर्चना, फूड उनको ऑफर करता है, बेल बजाते हैं, जो भी सेरेमनीज है दे ऑब्जर्व दो सेरेमनीज ऑल्सो. सो हियर द भक्त रिफर्स डिवोटी एज अ सुप्रीम पर्सन. एंड परा भक्ति जो है दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति. इसमें आता है कि जो भक्त है वो उसको लगता है कि द होल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड. सो जो भी वो देखता है, जो बोलता है, जो करता है वो सब गॉड है. मतलब जैसे अगर आप गार्डन के पास से जा रहे हो तो आप इमेजिन करते हो कि मैंने वहां से फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा लिए. खाना आपके सामने आता है तो आपको वहीं से लगता है कि मैंने खाना भगवान को भोग लगा दिया. तो दिस कम्स अंडर para bhakti. So this is the highest form of bhakti. Now practice of bhakti yoga includes, उसमें आता है मंत्र chanting, then satsang, jap meditation and service of sons. Now भाव्स, मतलब अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे भाव्स भी रहते हैं अलग अलग. तो उसमें क्या भाव है? तो फर्स्ट इज शांत भाव. शांत भाव मतलब जो डिवोटी है, जो भक्त है वो एकदम पीसफुल काम रहता है, उसका his heart is filled with joy and love. उसका एग्जाम्पल है भीष्म. देन सेकेंड इज दास्य भाव. दास्य भाव में आता है कि जो डिवोटी रहता है he has a servant attitude, he serve Lord as wholeheartedly and he finds joys in his service. So example is श्री हनुमान, जैसे उन्होंने राम जी की सेवा की थी वैसा. तो दास्य भाव का एग्जाम्पल है श्री हनुमान. फिर आता है सख्य भाव. सख्य भाव मीन्स गॉड इज द फ्रेंड ऑफ डिवोटी. सो इसमें आता है अर्जुन एंड कृष्णा. देन वात्सल्य भाव इज यशोदा एग्जाम्पल. इसमें आता है डिवोटी जो है वो गॉड को अपना भगवान जैसा मानती है. जैसे हम अपने बच्चे के लिए सब करते हैं वैसे वो भगवान के लिए सब करती है. एंड लास्ट इज माधुर्य भाव. इसको कांत भाव भी बोलते हैं. इसमें डिवोटी जो रहता है दे रिगार्ड द लॉर्ड एज हिज लवर. सो दिस इज आत्म समर्पण एंड लवर एंड बिलव्ड बोथ बिकम्स वन. सो हियर एग्जाम्पल इज राधा कृष्ण. Now types of bhakt. So 4 types of devotees are described in the Bhagavad Gita in the following slok.
चतुर्विद्या भजन्ते मम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्त्रो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये वाले श्लोक जो भागवत गीता में दिए चैप्टर 12 में, इसमें श्लोक में चारों टाइप के भक्त को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे फर्स्ट है अर्थ, इसमें क्या है कि जो भक्त रहता है वो भगवान को तब याद करता है जब उसको अपनी कुछ प्रॉब्लम से ओवरकम करना रहता है, तब वो भगवान को याद करता है, तो ये वो भक्त हुआ। फिर आता है न्यास जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब होता है कि उनको भगवान में बहुत विश्वास रहता है, वो और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि भगवान ने कैसे पृथ्वी बनाई या फिर यूनिवर्स क्या है और गॉड क्या होता है। तो ये आता है जिज्ञासु भक्त। फिर आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब होता है कि जो अपनी कुछ विश फुलफिल करने के लिए भगवान को प्रे करता है, वो भक्त होते हैं अर्थार्थी। और लास्ट होते ज्ञानी। तो ज्ञानी जो रहते हैं ये एकदम सेटिस्फाइड रहते, फुल एकदम गॉड को रियलाइज कर चुके रहते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि भगवान को हमने ये जो डिवोटीज रहते हैं ये फाइनली रियलाइज कर चुके रहते हैं गॉड को कि यस गॉड इज द ओनली वन, बाकी सब जो है वो अनट्रू है, एंड दे हैव ट्रू, उनको पूरा भगवान का नॉलेज आ चुका रहता है। नाउ 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन। सो रामायण में तुलसीदास जी ने 9 मोड्स ऑफ भक्ति एक्सप्लेन किया है, उनको बोलते हैं नवदा भक्ति। सो 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में आता है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, नवविधा भक्ति। जी सर, नवविधा भक्ति। हाँ नहीं सर, मैं मीनिंग पढ़ रही थी। जैसे श्रवणम इज हियरिंग, देन कीर्तन इज चैंटिंग द होली नेम्स या forms, smaran is remembering the Lord, and padasevanam is serving the God's feet, and archana is worshipping the Lord, then vandana is offering prayers to God, then dasa is becoming servant of the God, sakhyam is considering God as his best friend, and atma nivedan is complete surrender to the Lord. Now third is karma yoga. सो होल एसेंस ऑफ भगवत गीता जो है उसमें हमको कर्म योग के बारे में बताया गया है। सो कर्म मीन्स एक्शन, सो कर्म योगा इज द योगा ऑफ एक्शन और ड्यूटी। सो डूइंग योर ड्यूटी एट योर बेस्ट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईगो और अटैचमेंट इज कर्म योग। So here it is explained as कि do good, be good, do your job with complete dedication and don't expect anything in return. एक श्लोक है कर्मण्ये वदीकरस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगोष्ठ्व अकर्माणि। इसका मीनिंग होता है कि यू हैव द राइट टू कर्म, बट यू डोंट हैव एनी राइट टू थिंक कि मैंने ये कर्म किया है तो मुझे ये फल मिलेगा। यू शुड नेवर बी मोटिवेटेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। Now there are 4 laws of karma that is described in Bhagavad Gita so that you can enjoy your every moment of work. First is work with a sense of duty, then work without getting intensely attached to the work. Third is never allow the anxieties about the results interfere with your mind. And fourth is accept your failure and success with equanimity. तो जब हम कर्म करते हैं तो ये चारों अगर हम ध्यान में रख के करें तो दैट विल बी गुड। नाउ कर्म थियरी ये हमको पता है सबको, एज यू सो विल यू रीप। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, संचिता कर्म, पराबद्ध कर्म एंड आगामी कर्म। संचिता कर्म मतलब होता है कि अभी का नहीं, जो हमने इतने अपनी पहले की लाइफ में भी जो भी कुछ कर्म किए हैं वो सब एक हम बोलते हैं ना कि एक ऐसी गड्डी बन जाती है, एक हीप टुगेदर, तो वो सब हमारे प्रेजेंट में आते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन दैट हैव बीन गैदर्ड इन दिस एंड प्रीवियस ऑल अदर लाइफ्स, सो दैट इज संचित कर्म।
देन आगामी कर्म जो है दैट इज द फ्यूचर एक्शंस दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रेजेंट एक्शन, जो अभी हम करने वाले हैं उससे हमारे फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा, वो जो सारे कर्म हैं वो आते हैं आगामी कर्म में। और फिर आता है प्रबद्ध कर्म। प्रबद्ध कर्म मीन्स व्हेन यू आर व्हाट यू आर डूइंग नाउ इन दिस लाइफ एंड उसके रिजल्ट्स। सो दिस इंक्लूड्स इन प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध, प्रारब्ध, प्रारब्ध। थैंक यू। Now next fourth is Raj Yoga. So in Sanskrit, Raj means control. So Raj Yoga is the path of control. So Maharshi Patanjali gave a brief introduction to Raj Yoga in his Yoga Sutras of Patanjali, and in Yoga Sutras Patanjali pointed out the 8 practices. They are known as Ashtanga Yoga philosophy. So he insisted that once a person is able to practice all the 8 paths, they achieve the state of enlightenment. And chief practice of Raj Yoga is meditation. Purpose of these 8 practices are, so it helps us to purify our mind, to purify physical body, to gain mastery over senses and become free from worldly illusions. So these are 8 limbs of yoga: yama, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyana and samadhi. So starting के जो 4 है यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार, ये होते हैं बहिरंग, एंड जो लास्ट के 3 है धारणा, ध्यान, समाधि, ये होते हैं अंतरंग। तो सर मैं इसका डिटेल थोड़ा सा दूं या फिर ये किसी का है ऑलरेडी? ये ऑलरेडी है, आपको देने की जरूरत नहीं है, लिंक कर देंगे। अंतरंग पतिर, एक सेकंड इसके पीछे वाला स्लाइड जाओ ना। ओके ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट पतंजलि। हाँ सर, राजयोग, राजयोग, राइट राइट। and the last is Hatha Yoga. So word Hatha in a Sanskrit, this is the Sanskrit combination of words Ha and Tha. So Ha means sun and Tha means moon. So here there is a union of both the opposites. जैसे ह जो रहता है that means sun and it represents Pingla Nadi, and Tha it means moon and it represents Ida Nari. So this Hatha Yoga is designed to bring pairs of opposite together for the purpose of discovering something deeper. So there are various texts of Hatha Yoga like Swatmaram's Hatha Yoga Pradipika, Sage Gerant's Gerant Samhita, Gorakshak Samhita of Gorakshnath, Shiv Samhita, Yoga Ratnavali and Yog Taravali. The Hatha Pradipika says, ये जो श्लोक है हठ प्रदीपिका का, इसमें पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ह मीन्स सूर्य, ह मीन्स सूर्य एंड थ मीन्स चंद्र, एंड हठ प्रदीपिका में भी व्हाट योगा डज, सो इट ब्रिंग बैलेंस बिटवीन सन एंड द मून और इंग्ला एंड पीडा नारी. So there is union of Atma and Paramatma, and with this union finally the yogi attains the enlightenment. सर मैंने ये ले तो लिया है श्लोक, पर मुझे ये पढ़ना नहीं आया. कोई दिक्कत नहीं है, तो सर आप पढ़ के बताइए ना प्लीज. अकारे नोच्यते सूर्यास अकाराश्चंद्र सुक्तः चंद्र सूर्ये समीभूते हठ योग विद्या पयते और हठ योग विद्या व्यते. Okay, thank you sir. So aim of Hatha Yoga is to control the body and mind, because without strengthening and making the body and mind healthy, no spiritual endeavor gets accomplished. So Hatha Yoga is the staircase to reach the highest peak of yoga, that is Raj Yoga. So paths of yoga जो है जितने भी हमने देखे हैं, ये हमको ऐसा लगता है सेपरेट है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक्चुअली दे आर दी डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम वन डायस. सो अगर हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है,
एक पीस अटेंड करनी है तो वी हैव टू गो थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ योगा. सो वी कैन कंपेयर द पार्ट्स ऑफ योगा टू 4 different strands woven together to make the same rope, and each strand supports the other and it's strengthened by the others. Thank you.